Dear parents and dear students, welcome to Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 7568077458, class 3rd, subject science, chapter 3 and lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। दैट मीन्स व्हाट इज द मैकेनिज्म और द प्रोसीजर और द स्टेप बाय विच द ब्लड फ्लाई। बर्ड्स कैसे हवा में उड़ते हैं। The shape of the bird's body is specially designed to fly. It can cut through the air easily. Birds have HOLLOW hollow bones, making their body light. That means the shape of the bird is designed to fly in the air. The humans and the other animals cannot fly because they don't have that feature which enable the birds to fly. So they can easily cut the flow of the air and they can easily fly into the air. They have the hollow bones. Hollow means the bones doesn't have inside anything, that is known as hollow, like the water pipe. If you have see the water pipe, you can see there is nothing inside the pipe, that means that is hollow, making their body light, which make the weight of the bird's body light or light in weight. बर्ड्स की बॉडी का शेप ही क्या होता है, उड़ने के लिए बहुत ही स्पेशली डिज़ाइन, उनकी जो शेप होता है बॉडी का, उनका जो फीचर्स, उनके जो स्पेशल जो गुण है बॉडी का जो शेप है वो क्या उड़ने के लिए ही बनाया गया है। ह्यूमंस और एनिमल्स हवा में नहीं उड़ सकते क्योंकि जो उड़ने के लिए जिन जिन कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, विशेषता की ज़रूरत है, वो हमारी बॉडी में नहीं है। बर्ड्स की बॉडी क्या कर सकती है, बर्ड्स क्या कर सकते हैं, ईजिली हवा के बहाव को काट के आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती है वो क्या होती है, खोखली। होलो का मतलब क्या होता है, खोखली। मतलब बर्ड्स की बॉडी के बोन्स के अंदर क्या होता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमारी बोन वेट में क्या होती है, थोड़ी भारी होती है, लेकिन बर्ड्स की बोन क्या होती है, बहुत ही लाइट होती है। इस वजह से वो हवा में आसानी से उड़ सकती है। जैसे आपने कभी वाटर पाइप देखा हो, पानी का पाइप देखा हो जिसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है पानी का पाइप, वैसे ही क्या होता है, बर्ड्स की बोन्स होती है अंदर से पूरी खाली होती है, खोखली होती है, जो क्या करती है, बर्ड्स की बॉडी को क्या बनाती है, लाइट, हल्की बनाती है। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स which are attached to the body with the strong muscles. They move forward when they flap their wings up and down. The upward movement of the wings is called upstroke, upstroke, and the downward movement is called the DOW and down, STROKE, stroke, downstroke. The tail helps to change the direction of the flight. That means as like the humans, you also have muscles in your body, so birds also have their muscles in their body. The wings which is used by the birds to fly in the air is attached to their body with the strong muscles, and they can move their wings up and down, and when they move their wings up and down they take a flight and can easily fly in the air. When they move their wings upward, means towards the up, this movement is known as upstroke, while when they move their wings down on the earth, this type of movement is known as the downstroke. And the tail which present at the last
in the body of the birds is used to change the direction of the flight or during the flight. जैसे कि इंसानों के अंदर सारे जानवरों या जो भी लिविंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मसल्स होती है, वैसे ही बर्ड्स की बॉडी में भी क्या होती है, मसल्स. जो उनके विंग है, जो उनके पंख है, वो क्या होते हैं, बॉडी से मसल्स के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स से क्या होते हैं, बॉडी से जुड़े हुए होते हैं. जब भी बर्ड्स अपने पंख को फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, जब बर्ड्स अपने पंख को क्या कहते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उसकी मदद से वो क्या करती है, बर्ड्स आगे बढ़ती है या हवा में उड़ती है. जब वो अपने पंखों को क्या करती है, ऊपर नीचे. जब वो अपने पंखों को नीचे ऊपर की तरफ करती है, जब वो अपने पंखों को ऊपर की तरफ क्या करती है, हिलाती है या मूव करती है, तो उसे हम कहते हैं अप स्ट्रोक, मतलब ऊपर की तरफ अपने पंखों को हिलाना. और जब बर्ड्स अपने पंखों को नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ हिलाती है या मूव करती है, तब उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रोक, मतलब नीचे की तरफ हिलाना. और जो उनकी टेल, जो पूँछ होती है, जैसे हमारे गाड़ी में क्या होती है, स्टीयरिंग होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, गाड़ी को लेफ़्ट राइट क्या करते हैं, मोड़ते हैं, वैसे उनकी टेल क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करने में, ऊपर उड़ने के दौरान डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. There are many birds such as ostrich, emu, kiwi, penguin that do not fly. Instead, they can run very fast or dive into the water very well. The ostrich is the world's largest and the fastest flightless bird. Birds use the power of flight to search for food and safe place for building nest. They can also fly away when faced with the danger. You know very well that about the ostrich, emu, kiwi, and the penguin. You can see the picture of ostrich, emu, and the penguin. These are the birds which cannot fly into air, but they have the other unique features. Like ostrich is the fastest running bird, while penguin can dive, then go inside the water for their food or swim. जो ऑस्ट्रिच, कुछ जैसा कि आप जानते हैं कुछ बर्ड्स के बारे में, जैसे आपने ऑस्ट्रिच के बारे में सुना होगा, पेंगुइन्स के बारे में सुना होगा, और ये ऐसी बर्ड है जो क्या होती है, हवा में नहीं उड़ सकती. जैसे ऑस्ट्रिच, एम्यू, पेंगुइन, कीवी, ये ऐसी बर्ड है जो हवा में नहीं उड़ सकती. लेकिन इनके क्या होते हैं, अलग विशेषताएं होती है. जैसे ऑस्ट्रिच क्या है, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने भागने वाली क्या है, बर्ड है. वहीं पेंगुइन्स क्या होता है, पानी में क्या कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, पानी में थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाकर रह सकते हैं, या अपने खाने को ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, पानी में जा सकते हैं. और नेक्स्ट इज बर्ड. Why do birds fly from one place to another place? Obviously, to search food, to search the place where they can build their home or their nest, or also to run away if they find any danger there. बर्ड्स क्यों उड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो अपने खाने को ढूंढ सके. ऑब्वियसली खाने को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या अपने लिए घर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढने के लिए, या फिर जब भी उसको कभी क्या होता है, खतरा नज़र आता है अपने आसपास, तो वो क्या करती है, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. If the weather become unsuitable, birds fly away to other place. They return when the weather condition becomes suitable again. Unlike the human, when you feel the hot, you just you just switch on the fan, and when you feel the cold, you just wear the sweater. But unlike the humans, birds cannot wear the sweaters and the clothes. So if the weather or the climate is not favorable or not according to the birds, they change their place. Like some of the birds comes from the Arctic or the cold region to the India when there is too cold in that place, and
दे रिटर्न व्हेन देयर इज़ ए समर इन दैट प्लेस। कुछ बर्ड क्या होती है, जब उनके आसपास रहने की जो जगह होती है, जो क्लाइमेट, जो मौसम होता है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता या वो फेवरेबल नहीं होता उनके अकॉर्डिंग, तो वो क्या करती है, अपने जो रहने की जगह है उसको छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाती है, चली जाती है। और जैसे ही फिर से उनके जो उनका नेटिव, जो उनका होम है, जहाँ पे जो मौसम अगर फिर से क्या हो जाता है, सही हो जाता है, उनके रहने लायक हो जाता है, तब वो फिर से अपने उड़ के अपने घर चली जाती है। क्योंकि वो इंसान तो है नहीं जो ठंड लगने पे स्वेटर पहने या गर्मी लगने पे पंखा चालू करे, तो वो क्या कर सकती है, अपनी जगह को थोड़े टाइम के लिए बदल सकती है। जैसे बहुत सी बर्ड्स जो होती है, जब उनके वहाँ जैसे बहुत ही ठंडे जगह पे, जैसे अंटार्कटिका वगैरह जो बर्ड्स रहती है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण क्या होती है, इंडिया में आ जाती है। और जैसे यहाँ पे सर्दियाँ शुरू होती है इंडिया में, वहाँ पे क्या हो जाती है, गर्मी पड़ने लग जाती है, तो फिर से उड़ के वो अपनी जगह पे चली जाती है। एक्टिविटी एम टू लर्न हाउ बर्ड्स मूव देयर विंग्स, दैट मीन्स you have to do the activity for just to observe that what are the movements of the birds कैसे उड़ती है उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। मटेरियल नीडेड अ लार्ज स्क्वायर चार्ट पेपर, पेंसिल, ब्लैक स्केच पेन, सेफ्टी सीजर, दैट मीन वन सीजर, और चार्ट पेपर, पेंसिल और ब्लैक स्केच पेन। एक चार्ट पेपर चाहिए आपको, एक पेंसिल, एक ब्लैक स्केच पेन चाहिए और एक कैची चाहिए। प्रोसीजर, फोल्ड द चार्ट पेपर इन हाफ, on the fold draw the shape of the bird with the wings, open wings, cut the bird along the edges, cut a narrow strip along the border of the wings but not completely, they should still to attach to the wings. Now fold the bird's body along the middle and bend the strip down as shown in figure. Third, sketch the eyes. Fourth, when you hold the tail of the bird in one hand and move the hanging strips up and down, the wings of the bird move. That means first of all you have to you can see the picture here. First picture, you have to fold the chart paper from the middle, okay, and then you have to draw the picture of the bird with the help of the pencil. Then you have to cut the narrow strip or the thin strip at the end of the wing, okay, not completely but just the small part. Then you have to hold that hold the tail of the then you cut the shape of the bird from the chart paper. Then hold the tail with the one hand and hold the strip which you cut at the edges of the wing with the one hand. Move that strip up and down and you can see the wing of the birds keep moving. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चार्ट पेपर जो आपने लिया है उसको बीच में से क्या करना है, मोड़ना है। बीच में मोड़ने के बाद आपको क्या बनाना है, एक बर्ड का शेप बनाना है खुले पंख के साथ, जो पंख पूरे क्या हो, खुले हो, वैसा आपको एक शेप बनाना है। फिर उस शेप जो उसका पंख जो आपने बनाया है उसके लास्ट में यू कैन सी द वाइट कलर समथिंग डायग्राम। आपको उसके पंख के किनारे किनारे में क्या करना है, पतली पतली कैंची से पतली सी एक स्ट्रिप, एक पतला सा पट्टा काटना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा उसको बाद में लास्ट में छोड़ दीजिए ताकि वो उस पंख से जुड़ा रहे। फिर आपको उस शेप की पूरी बर्ड काटनी है चार्ट पेपर से। फिर एक हाथ से आपको क्या करना है, उसकी जो टेल है, पूंछ को पकड़ना है, और दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, जो स्ट्रिप्स आपने पतली पतली काटी है उसको दूसरे हाथ से क्या करना है, ऊपर नीचे करना है। और इस तरह से देखेंगे कि जैसे ही वो स्ट्रिप्स ऊपर नीचे होगी, बर्ड्स के विंग्स भी क्या होंगे, मूव करने लग जाएंगे। So here we complete our lecture, homework time. Class 3 subject science chapter 3 and lecture number 5. First is hollow. Hollow means खोखला.
फ्लैप मीन्स मूव अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग, मतलब फड़फड़ाना, ऊपर नीचे करना पंखों को। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। नोट सेंड योर डेली होमवर्क बिफोर 9 o'clock every day in a good handwriting on the WhatsApp number 7568077458। नोट, डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सअप नंबर 7568077458 पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।